ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਸਰੀ ਪੇਜ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਸਰੀ ਪੇਜ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਆ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਖਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਸਰੀ ਪੇਜ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾत ਕਰਦੇ हैं। पहला पंडित जी की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? हमारा नाम है पंडित शिव नारायण जोशी, तीर्थ पुरोहित हरिद्वार। तो क्या कहना चाहते हो, हरिद्वार में कितनी बड़ी गिनती में संगत पहुंची हुई है आज? हरिद्वार में माँ गंगा के दर्शन के लिए रोजाना लाखों यात्री यहाँ पर आते हैं, जिनकी माँ गंगा के प्रति अटूट श्रद्धा है, विश्वास है और संगतें यहाँ पर आती हैं बड़ी श्रद्धा भाव से। पिंडदान आदि भी यहाँ पर कराए जाते हैं और सभी संगत आती हैं आकर के अपने बच्चों के मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार और पिंडदान इत्यादि अपने पितरों की सदगति के लिए यहाँ पर तीर्थ पुरोहितों द्वारा कराए जाते हैं। माँ गंगा जो हरिद्वार में आई है उसका इतिहास हमारे यहाँ लिखा है कि माँ गंगा को भगवान श्री राम के पूर्वज राजा भागीरथ अथक प्रयास से माँ गंगा को स्वर्ग से यहाँ पर लाए थे और माँ गंगा को आने में 1 साल और 2 महीने लगभग लगे हैं हरिद्वार तक पहुँचने में। माँ गंगा ज्येष्ठ दशहरा गंगा दशहरा के दिन स्वर्ग से चली और भागीरथ जी के द्वारा के पीछे पीछे चलती हुई हरिद्वार में गंगा सप्तमी के दिन 1 साल 2 महीने में लगभग हरिद्वार में पहुंची है। इसलिए हम लोग हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित श्री गंगा सप्तमी को यहाँ पर माँ गंगा जी की पूजा करते हैं, सभी यात्री पूजा करते हैं और जितनी संगतें आती हैं माँ गंगा को दूध चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं और अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार माँ गंगा की षोडशोपचार पूजा करते हैं।
हरिद्वार में क्या कुछ खास है? हरिद्वार में माँ गंगा जी की आरती सुबह शाम 11,000 बत्तियों की एक आरती होती है, जो हमारे श्री गंगा सभा के जो ब्राह्मण लोग हैं वही सब सुबह शाम आरती करते हैं। आजकल आरती का समय सुबह 5:30 बजे और शाम को लगभग 7:30 बजे आरती का समय होता है। आजकल गर्मी का जो चल रहा है समय, उसमें शाम के समय तो लाखों यात्री माँ गंगा के दर्शन के लिए यहाँ पर एकत्र होते हैं। पहले माँ गंगा की पूजा होती है। चांदी की मूर्ति हमारे श्री गंगा सभा में के मंदिर में रखी हुई है। उसकी डोली यात्रा निकाल करके आरती स्थान पर लाया जाता है, वहाँ पर पूजा होती है। सभी यात्री अपने अपनी आरती बुक कराने के लिए बड़े लालायित रहते हैं। और अनेकों यात्री ये विचार करते हैं कि मैं भी आरती कराने के लिए मुझे भी गंगा माँ अपनी कृपा बनाए रखे। ऐसी भावना से माँ गंगा की आरती के लिए सभी लोग आरती कराने के लिए लालायित रहते हैं। लेकिन अथाह समुद्र जो है उसमें सभी की आरती एक साल में रोजाना हो जाए, ये बड़ा असंभव है। तो और कौन से मंदिर हैं जहाँ पर? हमारे हरिद्वार में माँ चंडी देवी, माँ मनसा देवी, सप्तऋषि आश्रम, भारत माता मंदिर और यहाँ से 4 किलोमीटर कनखल क्षेत्र में दक्ष प्रजापति का मंदिर है, जहाँ पर कहते हैं माँ पार्वती ने माँ अम्बा ने अपने शरीर को त्याग किया था और दक्ष के अभिमान को भगवान शंकर ने तोड़ा था। तो दक्ष प्रजापति का मंदिर कनखल में स्थित है। वहाँ पर भी रोजाना लाखों यात्री पूजा करते हैं, भगवान शंकर की आराधना करते हैं और अनेकों मंदिर यहाँ पर विराजमान है। जैसे माया देवी का मंदिर है, ये भी सिद्धपीठ है। तो यहाँ पर अनेकों मंदिर हैं जो हमारे सनातन धर्म के आस्थावादी हैं, सनातन धर्मी हैं, वो बड़ी श्रद्धा भाव से इन मंदिरों में पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। तो पंडित जी यहाँ पर अस्थियां भी पाई जाती हैं पानी में? अस्थियां यहाँ पर विसर्जन की जाती है, बाहर नहीं जाती, विसर्जन की जाती है। माँ गंगा को जो भागीरथ जी लाए हैं, उनका जो मेन मुख्य ध्येय था वो था पितरों की अस्थियों को माँ गंगा में विसर्जन किया जाए ताकि उनकी वो मुक्ति प्राप्त हो सके। माँ गंगा जो विशेष रूप से आई है वो पितरों के उद्धार के लिए आई है। और ऐसा बताते हैं कि जब तक प्राणी की अस्थियां माँ गंगा में प्रवाहित नहीं होती तब तक उसको मुक्ति प्रदान नहीं होती। माँ गंगा को आए हुए भगवान श्री राम के त्रेता काल में, उससे पहले जो भगवान राम के पूर्वज भागीरथ जी गंगा को लाए थे, लगभग 10 लाख वर्ष माँ गंगा को आए हुए धरती पर हो गए हैं। और माँ गंगा सभी सनातन धर्मियों की आस्था का प्रतीक है और माँ गंगा सभी का उद्धार करती है, उनको प्रेम करती है। ये हमारी माँ है और माँ हमेशा अपने बच्चों को हमेशा सभी सनातन धर्मियों को एक है कि माँ गंगा के द्वार पर जब आए तो यहाँ पर इसको स्विमिंग पूल न समझे। आकर के सबसे पहले ऐसा बताते हैं हमारे सनातन धर्म में कि सबसे पहले जब गंगा घाट पर आए, गंगा किनारे आए, तो सबसे पहले गंगा जी को हाथ से छू करके अपने मस्तक पर लगाना चाहिए, 3 बार आचमन करना चाहिए, सीधा पैर गंगा जी में न डालें। नंबर 2, यहाँ पर आए हमारी माताएं बहनें जो पश्चिमी सभ्यता को अंगीकार कर रही हैं, उसको छोड़ें और अच्छे वस्त्रों में, ये जो आज के शॉर्ट, ये जो छोटे वस्त्रों का चलन हमारे यहाँ चल रहा है,
हमारे सनातन धर्म को नष्ट किया जा रहा है। छोटे छोटे कपड़े पहन करके हमारी माता बहनें बेटियां आती हैं, ये अपराध है। जो हमारे पुरुष लोग हैं वो भी बड़े छोटे छोटे वस्त्र पहनकर अपनी जींस को फाड़ करके ऐसे अश्रद्धा भाव से जो आते हैं, तो हमें बड़ा कष्ट होता है। क्योंकि हमारी यहाँ पर कई पीढ़ियां हरिद्वार में बीत चुकी हैं और गंगा में जब स्नान करते हैं तो गंगा को ऐसे जो थप्पड़ मारते हैं, उसको देख करके हमें हमारी आत्मा को बड़ा कष्ट होता है। माँ, ये हमारी माँ है, हम इसको थप्पड़ मारें? बड़े प्रेम से स्नान करें। गंगा जी में स्नान है और नहाना बाथरूम का है, वहां पर आप जैसे भी नहाए। कम वस्त्र पहन करके महिलाओं को, हमारी बहन बेटियों को, हमारी माताओं को गंगा जी पर आना ही नहीं चाहिए। और मैं ये चाहूंगा कि हमारे सनातन धर्म के भारतवर्ष में जितने भी मंदिर हैं, वहां पर जो है ये बोर्ड लगा होना चाहिए, ये नियम बनाना चाहिए कि कोई भी छोटे वस्त्र या पश्चिमी सभ्यता के वस्त्र पहन करके मंदिर में प्रवेश ना करे। मेरी ऐसी सभी सनातन धर्मियों से और हमारे सनातन धर्म के पुजारियों से, ब्राह्मणों से ये उनको आग्रह है, ऐसी मेरी भावना है। मंदिर काफी लोग जहाँ पर जब मत्था टेकने के लिए आते हैं, कपड़े भी छोड़ जाते हैं जहाँ पर। ये बड़ा गंदा कार्य है। माँ गंगा में कभी भी वस्त्रों को, अपने नहाए हुए वस्त्रों को नहीं छोड़ना चाहिए, धोना नहीं चाहिए। अपने गंदे वस्त्रों को छोड़ जाते हैं और मैं छोड़ जाती हूँ। ये बड़ा महापाप होता है, बड़ा अपराध है। ये हमारी माँ है। माँ की जब तक हम गोद में खेलते हैं, माँ की गोद में हम लैट्रिन भी करते हैं, बाथरूम भी करते हैं, बचपन में हमें माँ कभी कुछ नहीं कहती। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं और कोई अपराध करते हैं तो माँ फिर हमें दंड भी देती है। तो मेरी ये प्रार्थना है सभी सनातन धर्मियों से कि माँ गंगा को बहता हुआ पानी ना समझे। ये साक्षात माँ है और माँ का जैसे आदर किया जाता है ऐसा ही आदर करें। मैंने एक बार एक यात्री, बहुत पुरानी घटना है, उस यात्री की आस्था को देख करके हमारा जो सर है उसके चरणों में झुका। वो यात्री महिला थी, बड़े श्रद्धा भाव से हरिद्वार में पहली बार आई थी। उसने कहा, पंडित जी आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन मैंने माँ गंगा के अपने घर पे साक्षात दर्शन किए हैं और उसी माँ गंगा के दर्शन मैंने घर पे किए। उसी आस्था को लेकर के, उसी भावना को लेकर के आज मैं यहाँ माँ गंगा के दर्शन के लिए आई हूँ। उसने कहा कि पंडित जी आपने दर्शन किए। मैंने कहा हमें ऐसा सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन मुझे गर्व है कि हमारे सनातन धर्म की महिला को माँ गंगा ने दर्शन दिए, वो भी हजारों मील दूर। क्योंकि हमारे यहाँ मंत्र बोलते हैं कि गंगा गंगेति सो मुरियात योजना नाम शतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम गच्छति। माँ गंगा 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 वो 3 बार हजारों मील दूर से ऐसा शब्द बोलता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। देखा कि पंडित जी उन्होंने पूरी जड़ी जानकारी है सानू दसी गई है, पूरी गलबात भी उन्होंने वालों दसी गई है कि किस तरह के हालात इत्थे बने हुए ने। लगातार जिहड़ी संगत वड्डी गिनती दे विच इत्थे पहुंच रही है, तो उन्होंने अपील की जा रही है तो वह स्विमिंग पूल ना समझण, तो यह गंगा मैया तो ये ध्यान दे नाल जिहड़े दर्शन ने वो करन, तो ना भी कोई हुल्लड़बाजी ना करन। नाल ही उन्होंने वालों कहा जा रहा है कि छोटे छोटे कपड़े पा के ना आवे, तो बहुत वधिया जिहड़ा मैसेज आ इन्हां दे वल्लों दित्ता गया। तुहानूं असीं लाइव तस्वीरां लगातार हरिद्वार तो दिखा रहे, तुसीं वेख सकते हो कि बहुत वड्डा इकट्ठ जिहड़ा इत्थे देखो, छोटे छोटे बच्चे इत्थे पहुंचे हुए ने, तो भी स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बिल्कुल लाइव तस्वीरां हरिद्वार तो तुहानूं असीं अपडेट दे रहे हैं, तो तुसीं वेखदे रहो अमृतसर केसरी। लगातार तुहाडे नाल इसे तरह ही
ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰ